Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So, in this particular video, we'll be taking a look at again from CAT 24 slot 2 DI based set, right? This DI based set is basically a bubble chart, right? Where data is actually represented on a XY axis along with the third variable being represented on a bubble, right? So, let's first understand this particular set. And before I actually begin, new batch starting from January 6th, right? So, if you haven't enrolled already, right? So links description mein hai. You can definitely go ahead and check out that batch. Also, we are currently running offers, new year offers. So those batch ko check out karo, right? Let's start with this particular session. And as always, before I actually begin, I would again encourage you to pause this video, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? Here are actually the questions. Now, let's start understanding this particular set, what is actually given in this particular scenario. So, what does this set say? The two plots below give the following information about six firms A, B, C, D, E, and F for 2019 and 2023. So, we have information for about six firms, exactly six firms, A से F तक for year 2019 as well as for year 2023. That is the first thing. Then, what is actually the information given in the uh, diagram, the plots? तीन values PAT, ES and PRD. Now let's understand one by one what do they actually mean. कैसे इसको read करना है from this particular chart. So PAT is given by the firm's profits after taxes in rupees crores. Now if I understand from here, so जैसे for example 2019 में if I start observing 2019 में for example this company C में एक डॉट पड़ा हुआ है ना सेंटर में, सेंटर ऑफ दैट सर्कल, यहीं से रीड करेंगे हम पैट डेफिनेटली. तो पैट इज ऑन दिस व्हाट वाई एक्सिस. तो पैट हम इस वर्टिकल लाइन पे रीड करना स्टार्ट करेंगे. तो कंपनी सी का पैट कितना दिख रहा है 2400. ऑब्वियसली द यूनिट इज crore rupees. ठीक है. So 2400 crore rupees is C's part. Similarly, D का part कितना हो जाएगा exactly midway around 3800 and 4000 के exactly middle में. So 3900 crores that would be the part for D. So this way we can actually go ahead and read the part values for all the six companies in 2019. The similar thing can be done in the year 2023. Almost similar chart है, इधर भी part है और इधर हमारा ES है. तो वही सेम कंपनीज का ए बी सी डी एफ का पार्ट का वैल्यू ऑब्वियसली कुछ ऑल्टर हो सकता है. तो उसकी वैल्यू अगेन हम इस वाई एक्सिस से रीड करेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. पैट कैसे निकलेगा. नेक्स्ट द सेकंड डेटा पॉइंट इज व्हाट ईएस. अब ईएस क्या है. द फर्म्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ. दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द फर्म. सो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ टोटल काउंट हेड काउंट, राइट. जितने भी टोटल एम्प्लॉयज होंगे इन दैट पर्टिकुलर कंपनी वो डायरेक्टली ईएस से रिप्रेजेंट होगा. और ईएस कैसे निकलने वाला है एक्स एक्सिस से. So again, we'll have to go to that particular point जो सर्कल का हमारा सेंटर होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर एफ. नाउ एफ अगर मैं नोटिस करूं, इसको अगर मैं यहाँ नीचे देखूं, यहाँ पे जी जितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी द ईएस फॉर कंपनी एफ इन ईयर 2090. दैट इज हाउ विल बी रीडिंग द ईएस वैल्यू. सो कितना हो जाएगा 700 एंड 900 के एग्जैक्टली मिडिल में 800. द गुड थिंग अबाउट इज बहुत ज्यादा इसमें अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत नहीं है. आइदर वो डबल मतलब 100 के मल्टीपल है, या तो बीच में हमारा लाइक 2200 है 2400 है उसके मिडिल में हो सकता है, या फिर जैसे यहाँ पे नोटिस करो एफ का 7 और 9 के एग्जैक्टली मिडिल में है तो 800. सो मिडिल ही रहेगा हमेशा जहां पे भी यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है. तो सेम विल बी फॉर 2023. यहाँ से भी ईएस की वैल्यूज विल बी डायरेक्टली रेड फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस. डी का ईएस काउंट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2023 में कितना हो जाएगा 7-9 के बीच में, दैट इज 800 एंड सो ऑन फॉर द रिमेनिंग कंपनीज, राइट. तो अब नेक्स्ट डाउट आता है कि ये सर्कल्स क्यों बने हुए हैं, पॉइंट ही दे देते. तो वो एक्चुअली में अपने को पीआरडी से समझ में आएगा. नाउ पीआरडी क्या है. द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पार्ट दैट दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी जिसको हम बोल रहे हैं. नाउ पीआरडी क्या है. बेसिकली एक परसेंटेज है ऑफ द फर्म्स पार्ट दैट दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नाउ पार्ट वी कैन डायरेक्टली फिगर आउट फ्रॉम दिस डेटा. और पीआरडी कैसे निकलेगा. द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पार्ट. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल पार्ट 100 रुपए, एग्जाम्पल 100 रुपए, राइट. अब पीआरडी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी का 20% है, तो अल्टीमेटली क्या है पीआरडी का एक तरीके से 20%. तो 20% ऑफ लाइक दैट 100 रुपीज, दैट विल गिव मी द टोटल अमाउंट दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वही है हमारा पीआरडी. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ पीआरडी मेरे को समझ में आता है इसमें कहीं दिया तो है नहीं इस पर्टिकुलर डेटा में, है ना. यहाँ चार्ट वगैरह में पीआरडी तो मेंशन नहीं है. तो कहीं ना कहीं पीआरडी विल बी
told in the subsequent lines. So let's keep reading further. In the plots, the horizontal and the vertical coordinates of the point representing each firm give their ES and PAT values respectively. Okay, we have already understood that. Then it talks about the PRD. The PRD values of each firm are proportional to the areas around the points representing each circle. The areas are comparable between the two plots, that is equal areas in the two plots represent the same PRD values for the 2 years. Now, अभी तक अपने को क्या समझ में आया था? This PRD इज बेसिकली अ परसेंटेज. वो परसेंटेज कैलकुलेट किस पे होने वाला है? फर्म के पार्ट पे. वो हमारा टोटल स्पेंडिंग देगा किस पे? आर एंड डी पे. पीआरडी का ना डायरेक्टली वो जो परसेंटेज वैल्यू वगैरह है वो डेटा यहाँ पे अपने को चार्ट में एक्चुअली में दिया नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली में बस ये बोल रखा है कि हमारा रिलेटिव पीआरडी जो कि परसेंटेज में रिलेटिव पीआरडी हम फिगर आउट कर सकते हैं. कैसे? द पीआरडी वैल्यूज ऑफ ईच फर्म आर प्रोपोर्शनल टू द एरियाज अराउंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ईच सर्कल. तो फॉर एग्जांपल एक चीज समझते हैं. फॉर एग्जांपल 2019 में अब देखो, जैसे 2019 में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, फॉर एग्जांपल तुम कंपनी ए को देख लो और कंपनी बी को देख लो. ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी को नोटिस कर रहा. ओके, बी मस्ट बी हाइडिंग बिहाइंड माय फोटो, सो लेट्स इट्स राइट डाउन हियर. ए और बी का एग्जांपल देखते हैं. ऑल्सो इन 2019 में देख सकते हैं. नाउ एक्चुअली में 2019 में ए और बी का अगर मैं इस सर्कल का एरिया का रेशो निकालूं तो वही उनका रेशो बन जाएगा. किस चीज का? उनके पीआरडी का. ये लाइन एग्जैक्टली ये बोलती है द पीआरडी वैल्यूज ऑफ ईच फर्म आर प्रोपोर्शनल टू द एरियाज अराउंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ईच फर्म. तो वो तो सर्कल है. तो जो भी हमारा सर्कल का एरिया बनेगा यहाँ पे ए एंड बी, ये जो दोनों सर्कल का एरिया बनेगा उनका जो रेशो होगा, राइट, वही रेशो होगा उनके पीआरडी का भी. ठीक. नाउ फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं पहले एरिया का रेशो निकाल लूं देन वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो एरिया का रेशो कैसे बनता है? किसी भी दो सर्कल का एरिया का रेशो ना तुम क्या कर सकते हो, जैसे नोटिस करो अल्टीमेटली क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई आर वन स्क्वायर या फिर पाई आर टू स्क्वायर देख लो तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? रेडियस का रेशो का स्क्वायर. दैट इज अल्टीमेटली व्हाट इज व्हाट आपका एरिया का रेशो. दैट इज रेडियस का स्क्वायर कर दो या रेडियस का रेशो निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, एक ही बात है. एक्चुअली में अब ये भी समझना है क्योंकि कभी कभी आपको इजी पड़ेगा. रेडियस इज नथिंग बट व्हाट? डायमीटर का हाफ. तो d1/2 भी लिख सकता हूँ और d2/2 भी लिख सकता हूँ और अल्टीमेटली उसका स्क्वायर रहेगा एरिया का रेशो. तो उसमें भी बाई 2 कट कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा? d1/d2 का स्क्वायर. तो जैसा भी तुम्हें कन्वीनियंट पड़े, द होल आइडिया इज टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर यू. किसी भी दो सर्कल का अगर तुम डायमीटर का रेशो देख लो, उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा, या फिर तुम रेडियस का रेशो निकाल के उसका स्क्वायर कर दो तब भी अल्टीमेटली तुम्हारा एरिया का रेशो आएगा. नाउ जैसे कि अगर मैं ए और बी पे फोकस करूं, ए का अगर मैं डायमीटर देखूं तो देखो इस पूरे लेंथ को ना बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइन इसको अपन 1 यूनिट ले लेते हैं लेट्स से, क्योंकि मेरे को तो एरिया कंपेयर करना है तो रेशियो है ना. तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइंस एज 1 यूनिट. तो अगर मैं नोटिस करूं सर्कल ए जो है उसका ओवरऑल डायमीटर या रेडियस जो भी तुम देना चाहो, डायमीटर देख लो. डायमीटर कितना बन जाएगा इसका? 2 यूनिट्स. ये अभी रेडियस का रेशियो याद रखना, ठीक है? 2 यूनिट्स इस टू बी का कितना हो जाएगा हमारा डायमीटर, या एक्चुअली मैं इसको डायमीटर लिखूं क्योंकि रेडियस नहीं लिखा मैंने, बट एक ही बात है. ठीक है, आप शायद डायमीटर का रेशियो देख लो या फिर रेडियस का रेशियो देख लो, उसका स्क्वायरिंग करना है आपको फाइनली. सो लेट्स से मैंने डायमीटर का रेशियो लिखा तो डायमीटर कितना हो गया इसका? 2 यूनिट्स. और यहाँ कितना हो गया हमारा? ये कितना हो गया? ये 2 यूनिट्स और 0.5 इधर. तो 2 प्लस 0.5 दैट इज 3. सो 2:3 बन गया ना. तो अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है कि जो डायमीटर का रेशो होगा वही उनके एरिया का रेशो होगा. दैट इज 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि पाई वगैरह सब कट जाता है. तो 4:9 इनके क्या होगा? एरिया का रेशो. नाउ एक्चुअली मैं वो ये कह रहा था स्टार्टिंग में कि जो इनके एरिया का रेशो होगा वही इनके पीआरडी वैल्यूज का भी रेशो होगा. पीआरडी वैल्यूज जब मैं बोलता हूं एक्चुअली मैं परसेंटेज के टर्म में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि ए का फॉर एग्जांपल जो पीआरडी है, लेट्स से एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, लेट्स से अगर वो 80% है, 80% थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा इजी नंबर लेते हैं, लेट्स से 20% एज एन एग्जांपल. ए का पीआरडी सपोज 20%. तो इसका और इसका जो पीआरडी का रेशो होगा वो 4:9 ही होगा. यही था उसका पूरा मतलब. तो अब ये कह रहा है कि जैसे 4 से 20 है, 5 टाइम्स हो रहा है ना ये, तो इधर भी ये क्या रहा होगा? 5 टाइम्स से 45%. तो अब ये मेरे को किसी का भी पता नहीं है एक्चुअली में कितना भी एक्चुअल परसेंटेज है. वो क्वेश्चन वगैरह में आपका कहीं कहीं मेंशन्ड होगा तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे. बट अगर किसी एक का दिया है तो रिलेटिवली हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं. दैट इज अ होल थिंग वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड.
एंड वन मोर थिंग एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पीआरडी का एरिया के बेस पे कंपैरिजन हुआ है, उसने ये भी बोल रहा है द एरिया आर कंपेरेबल बिटवीन द टू प्लॉट्स, दैट इज इक्वल एरियाज इन द टू प्लॉट्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम पीआरडी वैल्यूज फॉर द 2 years। तो यहां से जैसे इसी क्लस्टर में हम दो को कंपेयर कर सकते हैं उनके पीआरडी का, उसी सेम तरीके से हम यहां से यहां भी कंपैरिजन कर सकते हैं, वो चलेगा अपने को। फॉर एग्जांपल ए का अगर हम जैसे डायमीटर क्या कह रहे हैं यहाँ पे 2 है ना, और मान लो हम यहां पे कंपेयर करते हैं लेट से ए का, तो कितना है 1 प्लस 0.5 2। तो ए का नोटिस करो पीआरडी अपना अल्टीमेटली इधर भी 2 यूनिट्स है डायमीटर और इधर भी 2 यूनिट्स है, तो रेशियो इतना हो जाएगा 1:1। उसका स्क्वायर करोगे तब भी 1:1 रहेगा। तो हम एक्चुअली बोल सकते हैं कि यहां जितना भी पीआरडी रहा होगा कंपनी ए या फर्म ए का, उतना ही पीआरडी रहा होगा कंपनी ए का। और ऐसा भी नहीं है कि हम ए टू ए कंपेयर कर सकते हैं, हम ए टू यहाँ पे ई भी कंपेयर कर सकते हैं। वो सब फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज उसने बोल दिया था द एरियाज आर कंपेरेबल बिटवीन द टू प्लॉट्स, right? I hope this is absolutely clear to everyone. And now with this clarity in mind, let's attack each particular problem. ठीक है, इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करना पड़ेगा। We could have gone ahead and maybe made a table out of this, but देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो टेबल बना लेंगे, बट उसकी जगह हम डायरेक्टली कंपेयर क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। Now the first question, assume that the annual rate of growth in PAT over the previous year, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ARG कह रहे हैं, ठीक है, इज अ न्यू टर्म जो अभी तक मेंशन नहीं था, बट ठीक है। ARG क्या है, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द इयर्स फॉर ईच ऑफ द 6 फर्म्स। मतलब वो ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल फर्म ए का, ठीक है, फर्म ए का अगर मैं नोटिस करूं, जैसे मान लो 2019 से 2020 में अगर 20% का ग्रोथ हुआ है इन पैट, राइट, तो अगले साल भी हमारा ग्रोथ रेट कितना था 20, फिर अगले साल भी कितना था 20 एंड सो एवरेज जो ये है, मतलब एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर जो एआरजी है, इट रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द इयर्स फॉर ईच ऑफ द फर्म्स। तो हमेशा ओवरऑल क्या है, वो कांस्टेंट ही तरीके से चलेगा। एंड उसके बाद पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग फर्म्स ए बी सी ई हैड द हाईएस्ट एआरजी। नाउ एआरजी क्या है, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पैट है। नाउ अंडरस्टैंड ये क्यों लिखा है इसने, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट ओवर द प्रीवियस ईयर्स, लाइक क्योंकि हमारा जो डेटा दिया हुआ है ना, क्योंकि जो हमारा डेटा दिया हुआ है वो एक्चुअली में कहां दिया है, 2019 से डायरेक्टली 2023 में दिया हुआ है। तो हम अगर यहां से यहां कंपेयर करते हैं द रेट ऑफ ग्रोथ इन पैट, तो उसमें जिस कंपनी का सबसे ज्यादा आएगा वही आंसर भी हमारा हो जाएगा, बिकॉज हर कंपनी का जो लाइक ईयर वाइज ग्रोथ रेट था वो हमेशा कांस्टेंट रहा, तो ओवरऑल ग्रोथ रेट भी उसी कंपनी का सबसे ज्यादा होगा जिसका ईयर वाइज भी सबसे एक्चुअली में ज्यादा रहा होगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हमें सारी कंपनीज का कंपेयर करना भी नहीं है, वी ओनली नीड टू फोकस ऑन व्हाट, ए बी सी एंड ई। अब पैट में सीधे सीधे अपने को इंक्रीमेंट देखना है, तो वी डोंट नीड अदर वैल्यूज वगैरह। सो फर्म ई का नोटिस करते हैं। ई का कितना है, 2400 से चेंज होके हमारा पैट ई का कितना हो गया, ये हमारा 3500 अप्रोक्सीमेटली, राइट? सो दिस इज 3500। देन फर्म बी का अगर कैलकुलेट करें तो फर्म बी का कितना है, 2800, ठीक है, पैट इज 2800, और बी का यहाँ पे कितना है हमारा 3800। फर्म सी का देखो, सी का कितना है यहाँ पे 2400, और यहाँ कितना है 3000, 2400 से 3000। एंड फाइनली फर्म ए का देखो, ए का कितना है 3000 से एजियर 3000 से 3900 हो गया। सो 3000 से ओवरऑल ये कितना आ गया 3900। अब ओवरऑल ग्रोथ रेट देखना है तो बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेशन आपको चेक करनी है। 24 से 35, तो 24 से 35 कितने का ग्रोथ है, 11/24। यहाँ 28 से 38 वी कैन इग्नोर द डबल जीरोस बिकॉज वो सब में ही है। 28 से 38 10/28, ठीक है, 10/28। देन यहाँ पे 24 से 30, और यहाँ पे 30 से 30, सॉरी माय बैड, ये 24 से 30 नहीं, 6/24 एक्चुअली डिफरेंस देख रहे हैं, राइट? दिस इज 6 अपॉन ऑल्सो 24, ठीक है, 6/24। तो ये तो अपने को दिख रहा है 1/4 है, दैट इज 25% डायरेक्ट। बाकी 30 से 39 हुआ, सो 9/30 देख रहे हैं। नाउ इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसमें देखना क्या है अपने को, हार्ड द हाईएस्ट एआरजी, ठीक है। सो दो दो कंपेयर करके भी चल सकते हैं, हाईएस्ट एआरजी किसका है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ इसमें और इसमें, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है बट न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया है, तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन इससे तो छोटा ही होगा, तो ये तो हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फॉर्म बी गोज आउट ऑफ पिक्चर। भाई 9/30 है अब मेरा। अब 9/30 को देखो तो 3 3 और कितना हो गया, 3 10। सो ये एग्जैक्टली कितना हो गया हमारा, 30% हो गया। डेफिनेटली फिर 25% इज लोअर देन 30, ये भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। नाउ बिटवीन फर्म ए एंड फर्म ई, इसका हमारा 30% है, और ई का अगर हम देखें तो 11/24। नाउ 30% है ना, मेरे को बस ये देखना है कि क्या ये 30% से ऊपर है या फिर 30% से नीचे है। 24 का अगर मैं 10% देखूं तो कितना होता है, 2.4। 10% किसी का कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड से एक डेसिमल लगा दो, तो 24 का 10% इज 2.4। नाउ 2.4 का अगर मैं 30% देखता, मतलब अगर इस नंबर का मैं 10% 2.4 कह रहा हूं, तो 30% कितना होगा, इसका ट्रिपल होगा ना, दैट इज 24 × 3 इज 72, 7.2। तो ये तो उससे बहुत ऊपर है ना, तो डेफिनेटली 30% से ये ऊपर ही होने वाला है, एंड हेंस वी कैन से firm E had the highest ARG. Right? Now, let's move to the next question. That is the second problem. Second question क्या बोलता है, the ratio of the amount of money spent by firm C on R&D in 2019 to that in 2023 is closest to. Now, ये जो amount of money spent by this firm C on R&D है, यही तो ultimately हमारा क्या था, this PRD। पीआरडी वो हमारा परसेंटेज था, द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट दैट इज स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो परसेंटेज ऑफ पैट, दैट परसेंटेज ऑफ पैट वही हमारा अमाउंट स्पेंड ऑन आर एन डी है। नाउ हमें किसके लिए देखना है, कंपेयर किसके लिए करना है, फर्म सी का आर एन डी 19 to 23, और हमें समझा था यहां से यहां डायरेक्टली हम वो परसेंटेज का कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी नहीं है, मेरे को सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज देखना है, ठीक है, या रेशो के टर्म्स में अपने को देखना है। ना देखो फर्म सी का अगर हम 19 में देखें, 2019 का अगर हम फर्म सी का देखें, तो पैट के रिस्पेक्ट में निकलना है ना, तो पैट पहले देख लो, तो सी का कितना होगा, 2400, और यहां पे जो हमारा परसेंटेज होगा इन दोनों में 2019 और 23 में, परसेंटेज का अगर मैं पहले ही रेशियो देख लूं, तो सी का यहां पे और यहां पे क्या देखेंगे, डायमीटर का रेशियो देख लेंगे, डायमीटर के स्क्वायर स्क्वायर का रेशियो देख लेंगे, सॉरी। सो यहां पे डायमीटर कितना हो गया, 1 + 1 2 प्लस 0.5 3 यूनिट्स, और यहां पे कितना है ये, 2 यूनिट्स, तो 3:2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3:2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9:4। तो ये 9:4 के रेशियो में होगा। अब आप उसको 9%, 4% भी बोल सकते हो, 90%, 40% बोल सकते हो, वो अपने को नहीं पता, बट अल्टीमेटली दिस इंटू 24 होगा, और यहाँ पे भी 4 × 2023 का जो हमारा पैट होगा, किसका, कंपनी सी का अगेन। तो सी का हमारा पैट कितना था यहाँ पे, 3000, सो ये कितना हो जाएगा, 3000। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो ले सकते हैं, और ये समझो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी होता, मेन क्या है, वो सब कुछ कैंसिल हो जाता, अल्टीमेटली क्या बचना है तुम्हारा, 9:4। सो वी नीड दैट 9:4, वो हमारा एक्चुअली में क्रूशियल नंबर है। अब इसके बाद लेट्स क्विकली सॉल्व दिस, कितना हो जाएगा, 4, ये 0000 कट जाएगा, 4 × 6 is 24, 6 × 5 is 30, तो अल्टीमेटली विल गेट व्हाट, 9/5, दैट इज ऑप्शन सी, राइट, दैट इज अ राइट आंसर। नाउ लेट्स गो टू दिस थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फर्म्स ए सी ई एंड एफ हैड द मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय। नाउ मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय इस लाइन में ही क्लियर है कि अल्टीमेटली अपने को पैट को किससे डिवाइड करना है, ईएस से, दैट इज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था। तो मैक्सिमम पैट पर एम्प्लॉय, दैट इज टोटल पैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर कर दोगे, तो वही हमारा पैट पर एम्प्लॉय आ जाएगा इन केस ईयर 2023। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, कैट में बहुत रेयरली इस टाइप के कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट है प्रॉब्लम। इट गोज बैक टू द एरा ऑफ लेट्स से 2000s, राइट, उस टाइम पे डायरेक्टली इस टाइप के प्रॉब्लम आया करते थे, मे बी इवन बिफोर दैट। सो एनीवेज लेट्स नॉट डाइग्रेस, 2023 में अपना ए सी ई के लिए निकालना है, बस ए सी ई और एफ के लिए निकालना है। नाउ ए का कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज, आई इग्नोर द मे बी डबल जीरो बिकॉज वो सब में ही होने वाला है। सो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 39/13, 39/13 डायरेक्टली कितना आ गया ये, 3। सी के लिए कितना हो जाएगा हमारा, सी के लिए हो जाएगा हमारा 30/800 है ना, तो 8 लेंगे उसको, तो 30/8।
आई एम इग्नोरिंग डबल जीरोज हियर एंड अगेन डबल जीरोज हियर, क्योंकि वो तो सब में ही है, कैंसिल हो जाएगा। तो 30/8 कितना हो जाएगा? 3 8 is 24, 60, 3.7 अप्रोक्सीमेटली है ना, 15/4, तो 3.75 आएगा ना, 15/4। यस, 4 3 12 एंड 7, ठीक है। सो 3.75, तो डेफिनेटली हम लोग क्या निकालने वाले हैं? मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ए गोज आउट ऑफ द पिक्चर, सी अभी बचा है। ई के लिए देखते हैं, ई का क्या सीन है? ई का हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35/14, तो 35/14, 7 से काट दो, 7 5 7 2, सो दिस वुड बी व्हाट? 2.5। अगेन चेक कर लेते हैं, ई का 35/14, तो 35/14, 7 5 7 2, 5/2, दैट विल गिव मी 2.5। तो अगेन 3.75 इज बेटर दैन 2.5, एलिमिनेटेड। एंड फाइनली बचता है हमारा एफ। एफ का देख लो कितना है? 32/10 ले लेंगे, तो 32 सीधा सीधा 10, इट विल गिव मी 3.2। हेंस ये भी इससे तो छोटा ही है, हेंस ऑप्शन ए, दैट इज फॉर्म सी, विल बिकम माय हाईएस्ट वैल्यू। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड नाउ लेट्स गो टू दिस लास्ट एंड द फोर्थ प्रॉब्लम। विच अमंग द फर्म सी डी ई एफ, किसके लिए करना है? सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए और एफ के लिए, had the least amount of R&D spending per employee। अब समझो, लीस्ट अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय 23 का क्या मतलब? ये जो निकाल रहे हैं इसमें भी आपको वैल्यू थोड़ी निकाली, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। और ये निकलेगा कैसे? लीस्ट अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय। तो अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग हमें पता है, दैट सेम थिंग, ये जो हमारा पीआरडी था, पीआरडी इनटू कितना, किसके ऊपर कैलकुलेट होता है आपका पीआरडी? पैट के ऊपर, डिवाइडेड बाय स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय है, डिवाइडेड बाय कितना हमारा? एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। और बिकॉज हमें कंपैरिजन करना है, तो इसीलिए पीआरडी का कंपैरिजन जब होगा बाकियों से, तो अल्टीमेटली वही सर्कल के एरिया के रेशियो से हो जाएगा। बाकी पैट एंड ईएस अपने को अल्टीमेटली क्या है पता है। नो लाओ, लेट्स केयरफुली राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। तो पहले हम सबका ना पीआरडी वाला रेशियो लिख लेते हैं। तो डायमीटर का रेशियो ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर करके यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पहले। एंड पैट एंड ईएस तो डायरेक्टली हम रीड कर लेंगे चार्ट से, और याद रखना 2023 में करना है, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक कि 19 में चले गए। नाउ सी के लिए देखते हैं, तो सी के लिए हमारा कितना है? डायमीटर 2 यूनिट्स है, साइड में कर लेते हैं पहले, ठीक है, 2 यूनिट्स है। फिर डी के लिए कितना है हमारा? डी के लिए भी 2 यूनिट्स है, ओके। देन ई के लिए ये दिस होल थिंग इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 3 यूनिट्स है बेसिकली डायमीटर। एंड एफ के लिए टोटल डायमीटर हमारा कितना हो गया? 1 + 1 2 यूनिट्स। तो ओवरऑल अगर मैं अपना वो पीआरडी का रेशियो देखूं, तो इनके डायमीटर का स्क्वायर का रेशियो बनेगा। सो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। इन सब के स्क्वायर का रेशियो 4:4:9:4 आ गया। अब बाकी बचा हमारा 4 4 9 और 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? तो हमें पता है यहाँ पे 4 के साथ किस कंपनी का देख रहे थे? सी का ना। सो पैट अपॉन ईएस करना था, तो सी का पैट अपॉन ईएस, इसमें भी डबल जीरो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो 30/8, 30/8। डी का कितना हो जाएगा हमारा? 24/8 अगेन, ठीक है, 24/8। देन ई का कितना हो जाएगा हमारा? ई का इज 35/14, 35/14। और एफ का फाइनली हमारा कितना हो जाएगा? 32/10, 32/10। अब देख लो ये कितना हो गया? 4 2 30/2 इज 15, ये 8 × 3, 4 × 3 इज 12। यहाँ पे 7 5 7 2 5 9 इज 45, 45/2, 22.5, तो काफी बड़ा है। एंड फाइनली ये कितना हो जाएगा? 4/10, 32, कितना हो गया? 4 2 8, 4 3 12, 12.8 बन जाएगा ये, राइट। सो ऑब्वियसली फिर हमारा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू किसका आ रहा है? हमारा ई का। ओ एक्चुअली एक्चुअली मेरे को क्या निकाला था इसमें? लीस्ट निकाला था, सॉरी। तो ये तो हाईएस्ट हो गया। लीस्ट हमारा कितने का आ जाएगा? दिस कंपनी डी, राइट। डी विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ R&D स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय, ठीक है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल, लीस्ट पूछा था इसमें, मैक्सिमम नहीं पूछा था, राइट। सो इट हैज टू बी दिस डी, दैट इज ऑप्शन बी,
Right? So purely a calculative set. This definitely should be an attended in an exam, and possibly इसके चारों क्वेश्चन करेक्ट भी होने चाहिए. ठीक है? It cannot get easier than this in the actual CAT paper. ठीक है? So that is all for today in this particular session. Next class I will be taking another set from CAT 24, and if you are preparing for CMAT, so उसका batch का भी link आपका description में. You can definitely check out that batch. Right. So thank you guys for joining. Hope you have a good day. Thank you. Bye bye.